بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج ہم ذکر کریں گے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جید صحابی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت حاصل کرنے والے واحد صحابی کہ جو سن 7 ہجری میں اسلام قبول کرتے ہیں اور 11 ہجری میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار کا وصال ہو جاتا ہے۔ 4 سال کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں رہتے ہیں، قربت میں رہتے ہیں، اور آپ سے کم و بیش 5300 احادیث مروی ہیں۔ معلوم ہوا کہ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس قدر محبت کرنے والے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ کا زمانہ جاہلیت میں نام عبد شمس تھا، اور اسلام لانے کے بعد بعض اقوال کے مطابق آپ کا نام عبداللہ اور زیادہ اقوال کے مطابق آپ کا نام عبد الرحمن ہے۔ آپ کی کنیت ابو ہریرہ، یہ کنیت دو جہان کے سردار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آپ کو عطا کی گئی۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ کو بلیاں پالنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ ایک دن آپ اپنی بلیوں کے ساتھ اس قدر مصروف تھے کہ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ پکارا عبد الرحمن، لیکن آپ اس قدر محو تھے کہ آپ تک آواز نہ پہنچی، اور کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذرا قریب ہو کر سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ یا ابا ہریرہ، آپ ادب اور محبت کے ساتھ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اٹھ کھڑے ہوئے، اور آپ کو کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے یہ نکلا ہوا نام اس قدر پسند آیا کہ آپ گلی کے کونے پر کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے کہنے لگے کہ لوگوں، آئندہ مجھے عبد الرحمن کے نام سے نہ پکارا جائے بلکہ مجھے ابو ہریرہ کے نام سے پکارا جائے۔ حتیٰ کہ یہ نام اس قدر مشہور ہوا کہ عبد الرحمن بھول ہی گیا اور ہر ایک کی زبان پر ابو ہریرہ ہی یاد رہا، سبحان اللہ۔ جب آپ مشرف با اسلام ہوئے تو کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن کر جب آپ گھر تشریف لے جاتے تو اپنی والدہ جو کہ مسلمان نہ تھی، آپ کا دل کرتا تھا کہ میں اپنی والدہ کے سامنے اپنے محبوب کے نام کا اظہار کروں اور ان کی باتیں شیئر کروں، لیکن جب آپ باتیں کرتے تو ماں چونکہ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والی نہ تھی، کافر تھی، تو اس ماں کو بہت زیادہ غصہ آتا تھا کہ میرے سامنے میرا بیٹا اپنے نبی کا نام کیوں لیتا ہے۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک کیا تو ماں نے انتہائی غم و غصے کا اظہار کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی غصہ آ گیا۔ آپ نے اس دن ارادہ کر لیا کہ آج کے بعد میں اس گھر میں نہیں رہوں گا۔ جب آپ غصے کے ساتھ گھر سے باہر نکلے، آپ کے والد تو پہلے ہی نہیں تھے، نہ آپ کی کوئی بہن تھی، نہ آپ کا کوئی بھائی تھا، آپ اکیلے تھے، ایک ہی دنیا کے اندر رشتہ آپ کی والدہ کا تھا۔ تو آپ نے دل میں سوچا کہ میں آج اس رشتے کو بھی ختم کر دوں گا، کیونکہ میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غلط بات نہیں برداشت کر سکتا۔ ابھی آپ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ آپ کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ جب کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کے قدم اٹھے تو کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے تو آپ نے جاتے ہی جا کر یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا کیجیے۔ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت اپنے ہاتھ بلند کر لیے اور رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم ہدی اما ابو ہریرہ، یا اللہ ابو ہریرہ کی امی کو ہدایت عطا فرما۔ ادھر کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، ادھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کر اپنے گھر کی طرف بھاگے۔ راستے میں کسی سے ملاقات ہوئی تو پوچھا ابو ہریرہ خیر تو ہے؟ عرض کرنے لگے آج ہی تو مزہ ہے کہ دیکھوں کہ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا میرے گھر پہلے پہنچتی ہے یا میں پہلے پہنچتا ہوں، سبحان اللہ۔ جب آپ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے تو دروازے کو کنڈی لگی ہوئی تھی اور کوئی غسل کر رہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پر دستک دی
तो इतना मुशफिकाना अंदाज में अंदर से जवाब आया। तो इस अंदाज से गुफ्तगू से पता चल गया हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो को कि मेरे मुस्तफ़ा की दुआ मुझसे पहले पहुंच गई है, क्योंकि वालिदा गुस्ल कर रही थी और जब दरवाज़ा खुला तो वालिदा का चेहरा इंतहाई मोहब्बत के साथ भरा हुआ था और गुस्ल करके कह रही थी कि मुझे अपने महबूब से मुलाकात करवाओ और मुझे भी अपने महबूब की बारगाह में ले जाओ। सुबहान अल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो जहान के सरदार की बारगाह में रहने का सदका कि आपकी वालिदा को भी इस्लाम की दौलत अता की गई। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो चूंकि मसाकीन में से थे और असहाबे सुफ़ा में से थे, हर वक्त कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर रहते थे। बहुत ज़्यादा वक्त कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर रहते थे। एक दिन आपका इरशाद है कि मैं 3 दिन का भूखा था और चूंकि मैंने कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना था कि सवाल किसी से लिपट कर नहीं करते, मैं 3 दिन का भूखा था और मैंने किसी से सवाल ना किया कि मुझे भूख लगी है। मैं एक जगह ऐसी पर खड़ा हो गया कि जहां से लोगों का गुजर था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो का गुजर हुआ। मैंने उनसे कोई कुरान की आयत पूछ ली कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो थोड़ी देर के लिए मेरे पास रुकेंगे और मेरे चेहरे को देखकर भांप जाएंगे कि अबू हुरैरा को भूख लगी है। लेकिन शायद कि वो जल्दी में थे और वो कुरान की आयत बताकर आगे चल दिए। इसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का गुजर हुआ। मैंने उनसे भी इसी तरह का कोई कुरान का सवाल पूछा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु भी शायद जल्दी में थे और मुझे भी वो सवाल का जवाब देकर आगे को चल दिए। इतनी देर में कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कायनात के वो सरदार जिनको रब्बे कायनात ने इमामुल अंबिया बनाकर दुनिया में मबूस किया, और वो जब गुजरे तो मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में भी इसी तरह का सवाल किया तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे चेहरे की तरफ देखा और आपने पूछा कि अबू हुरैरा क्या तुझे भूख लगी है? तो मैं अर्ज गुजार हुआ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी मुझे भूख लगी है। तो कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आओ मेरे पीछे पीछे आओ। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चल दिए। जब घर पहुंचे तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूध का प्याला मंगवाया। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि जाओ ये दूध का प्याला मेरे पास मौजूद है, अपने बाकी जो साथी असहाबे सुफ़ा हैं उनको भी बुलाकर ले आओ। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 70 असहाबे सुफ़ा को बुलाकर ले आए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वो प्याला दिया कि जाओ इस एक साथी से शुरू करो और सबको ये प्याला दूध का दो, मैं एक साथी को जब प्याला पेश करने लगा तो मेरे दिल में ख्याल आया कि ये तो प्याला सारा यही पी जाएगा, अबू हुरैरा तू फिर भूखा रह जाएगा। लेकिन कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा था कि उस साथी ने उस दूध को सैर होकर पिया, लेकिन प्याले में दूध उसी तरह का मौजूद था। इसी तरह एक एक करके 70 लोगों ने वो दूध पी लिया और आखिर में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो जहान के सरदार ने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि अबू हुरैरा अब तुम खुद पी लो। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने जी भर कर पी लिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फिर इरशाद हुआ अबू हुरैरा और पी लो, मैंने और पी लिया। तीसरी मरतबा जब कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि ए अबू हुरैरा और पी लो, तो मैंने कहा कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब्बे काबा की कसम अबू हुरैरा के वजूद में अब कोई गुंजाइश नहीं रही। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ऐसे लगता था कि जैसे इस प्याले के साथ जन्नत की कोई नहर दूध वाली का लिंक मौजूद है। सुबहान अल्लाह। आखिर में कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खुद दूध नोश किया और ये पैगाम दिया कि लोगों, मोमन के जूठे में शफा है और मोमन का आईना है। सुबहान अल्लाह। ये कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों की बरकत थी, उनका मौजज़ा था कि एक दूध का प्याला आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम समेत 71-72 लोगों ने वो दूध पिया, लेकिन दूध खत्म ना हुआ। सुबहान अल्लाह। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चूंकि असहाबे सुफ़ा में से थे और मसाकीन कहलाए जाते थे।
हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर मोहब्बत करते थे कि आपकी एक एक अमल को गहरी नज़र से देखते थे। एक दफ़ा हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ आप मौजूद थे कि आपने फरमाया कि अब्दुल्ला बिन उमर, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो जहान के सरदार का इरशाद है कि अगर कोई इंसान किसी का जनाजा पढ़ के आए तो उसे एक की रात सवाब मिलता है, अगर वो उसको दफनाने मट्टी डालने तक वहां कब्रिस्तान में मौजूद रहता है तो उसे 2 की रात सवाब मिलता है, और 1 की रात ओहद पहाड़ जितना है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सुनकर गुस्से में आ गए। आप फरमाने लगे कि अबू हुरैरा कुछ होश करो। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी वक्त हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में आए और अर्ज करने लगे कि अम्मी आयशा, रब्बे काबा की कसम सच बताइए कि क्या कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात ऐसे नहीं की कि अगर कोई इंसान जनाजा पढ़ के आए तो उसे 1 की रात, और अगर मट्टी कब्र पर डालने तक कब्रिस्तान में मौजूद रहे तो उसे 2 की रात तक सवाब मिलता है। तो हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, हाँ अबू हुरैरा, बिल्कुल मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यह फरमान सच है। तो उस वक्त हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अबू हुरैरा तुम इल्म में पुख्ता हो। सुबहान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में यह कहा जाने लगा कि सबसे ज्यादा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली करमुल्लाह वजहू कायनात के ताजदार के साथी रहे या उनकी सोबत में रहे, लेकिन उनसे इतनी अहादीस मरवी नहीं जितनी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी हैं। तो इस ऑब्जेक्शन का जवाब हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह दिया कि मेरे साथी कुछ अंसार थे, कुछ मुहाजिर थे, कुछ खेती बाड़ी में मसरूफ रहते थे और कुछ तिजारत में मसरूफ रहते थे, लेकिन अबू हुरैरा कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खानकाह में हर वक्त मौजूद रहता था। ना वो खेती बाड़ी करता था, ना वो तिजारत करता था। जब कभी कोई खाना आ जाता था तो वो खा लेता था, नहीं तो कई कई दिन भूखे भी रहना पड़ जाता था। इसलिए कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर रहमत का ये मुझ पर इनाम है कि मैं कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस रवायत करता हूँ। और मुझे अहादीस याद कैसे रहती हैं? कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मैं हाजिर हुआ और मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो भी मैं बात सुनता हूँ या देखता हूँ मुझे भूल जाती है। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो जहान के सरदार की नजर रहमत का सदका मुझे फरमाया कि अबू हुरैरा अपनी चादर को खोल लो। मैंने अपनी चादर को ऐसे खोल दिया तो कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह लब भर कर मेरी चादर के अंदर डाले। 3 मरतबा डालने के बाद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया कि अबू हुरैरा इसको अपने सीने के साथ मल लो। मैंने इस तरह वो अपने सीने के साथ मल लिया। रब्बे काबा की कसम, उस दिन के बाद जो भी मैंने सुना ना मुझे वो भूला और जो मैंने कोई देखा वो भी मुझे नहीं भूला। ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो जहान के सरदार का मुझ पर बहुत बड़ा कर्म था कि उनकी नजर अनायत का सदका के रब्बे कायनात ने मेरी यादाश्त को तेज कर दिया था। सुबहान अल्लाह। चंद साहबी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए और कहने लगे कि अबू हुरैरा आओ, हम वहां से अहादीस को सीखती हैं। वो अपने साथ कोई लिखने के लिए भी चीज लेके जाते थे, लेकिन हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाली हाथ जाते थे। एक दिन वो साथी कहने लगे कि ए अबू हुरैरा, तुम तो फजूल में हमारे साथ जाते हो, ना लिखते हो ना कोई उसका लिखने का एहतमाम करते हो, तो तुम्हें कैसे याद रहेगी। कहने लगे कि तुम मुझे दिखाओ तुमने क्या लिखा। जब उन्होंने अपनी अहादीस लिखी हुई दिखाई तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो 4000 अहादीस उनको ज़बानी सुना दी। सुबहान अल्लाह। तो ये कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ तोहफा था। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ और उसके महबूब के साथ इंतहा का इश्क करने वाले थे। पड़े रहते थे, जिंदगी भर शादी नहीं की और कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर अपनी जिंदगी को कुर्बान किया। हम पर आपका बहुत बड़ा एहसान है। आपकी वफात मदीनतुल मुनव्वरा में हुई और कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों का सदका आपका मदफन जन्नतुल बकी है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी
तुरबत पर लाखों करोड़ों रहमतें नाजल फरमाए और आपकी पाक सोहबत का सदका कि रब्बे कायनात हमें भी वो इश्क अता फरमाए जो कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हमें सुरखरू करे।